Good morning students, welcome to our social science class. So in our previous class I explained you about the primitive man nomadic life, places of human habitation of primitive man in India. So today we will start with discovery of fire and wheel and their uses. Ruins of ashes found in the caves of primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire. As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire. Use of fire had revolutionized their life because with the help of it, they could they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुछ एविडेंसेस मिले थे, मतलब प्रूफ मिले कि जो प्रिमिटिव मैन थे वो फायर का यूज़ करते थे. तो उसका यूज़ किसके लिए यूज़ करते थे वो? तो अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए और फूड को कुक करने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे. और जब अंधेरा हो जाता था तब लाइट की ज़रूरत पड़ती थी तो वो आग जला के बैठते थे. Changing environment. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world due to increase in temperature. Vegetation and grass field started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals like deer, sheep, goat, etc. increased. Primitive man certainly got benefits of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. तो 12,000 साल पहले क्या हुआ? कुछ चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में. तो इस चेंजेस में क्या क्या हुए? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, vegetation and grass will started growing in many areas of the world. तो इसके वजह से जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि डियर, शीप, गोट, तो इनकी संख्या बढ़ गई. और प्रिमिटिव मैन था जो वो क्या करने लगा, इन एनिमल्स के बिहेवियर को जानने लगा. मतलब वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जहाँ ग्रास ज़्यादा होती है, वेजिटेशन रहती है, तो ये सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं. तो उसको ये इजी होता है कि उनको हंटिंग करने के लिए. और उसके अलावा जहाँ वेजिटेशन होती है वहाँ रूट्स और फ्रूट्स भी मिलेंगे, तो वो लोग ऐसे उनको स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि ये सारे चीज़ें हम भी खा सकते हैं. They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate change. By using stones, women, men and children collect the grains. Because of this curious instinct, slowly agriculture started in India. People started using stones to grow grains. They started growing grains near the banks of the rivers and constructed their houses made up of mud, thatch and other materials in the nearby areas. As a result of it, their nomadic life came to an end and started a settled life. The first companion or friend of his settled life was a dog. Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they started adjusting with them too. These animals protected them from wild animals. Thus, they associated with the animal husbandry also, along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. जैसे वो कांटेक्ट में आ गए ग्रास, ट्रीज और वेजिटेशन के साथ, तो उनको पता चल एज वेल एज वीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स, तो ये सारे क्लाइमेट के चेंजेस के वजह से हो रहे थे. तो उसके बाद वो स्टोन से बने हुए टूल्स और वेपन्स यूज़ करने लगे. उससे क्या करते थे, जो मैन, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो ग्रेन्स कलेक्ट करते थे. और इस तरह से वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में. वो ज़्यादातर जो नदी के किनारे होते वहाँ पे रहने लगे, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो
बहुत ही एसेंशियल चीज़ है ह्यूमंस के लिए। तो वो हमेशा रिवर के बैंक्स पर रहते थे और वहाँ नदी के किनारे ही वो क्या करते थे, घर बांधना स्टार्ट किया, जैसे कि मड है, थैच है, ये सारी चीज़ों से वो अपना घर बनाने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उनका नोमैडिक लाइफ था, मतलब वो हंटिंग और गैदरिंग का लाइफ था, वहाँ पे उनका एंड हुआ। तो वो एक सेटल लाइफ जीने लगे और उसके साथ वो कुछ एनिमल्स को भी पालने लगे, जैसे कि शीप, गोट, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। तो वो क्या करते थे, उनको एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट किए थे और उनसे जो मिल्क मिलता था वो सारी चीज़ें वो यूज़ करने लगे। और उसका फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड था डॉग। तो डॉग उनको प्रोटेक्ट करता था वाइल्ड एनिमल्स से। सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। Early life and pastoral activity transfer primitive man's life into settled life. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. This process led to beginning of the settled life in India. He also started making earthen pots for the storage of grains. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes and shelter. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlement. He lived in houses made up of mud, thatch and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone, which included spade, chisel and sickle. The following table shows us the places in India where grains, shelter, weapons and remains of animals have been found. तो जैसे वो एग्रीकल्चर करने लगे, तो उसको जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया प्रिमिटिव मैन ने, तो जब खेत में हम करते हैं, तो जब पहले हम वो क्रॉप्स उग के जब तक उनसे अनाज नहीं मिलती है, उनको एक ही जगह पर रहना पड़ा। तो इस तरह से इंडिया में सेटल लाइफ स्टार्ट हुआ। वो हमेशा नदी के किनारे ही रहते थे क्योंकि वहाँ के पानी का फैसिलिटी मिल सके। तो क्या करते थे, वो जो भी ग्रेन्स, अनाज उगने के बाद उनको स्टोर करना पड़ता है, तो वो जो माटी से बने हुए वो पॉट्स बनाने लगे और उसके अंदर स्टोरेज करने लगे। तो उसके अलावा उन्होंने अपने फूड में भी चेंजिंग किया, क्लोथ्स, शेल्टर में भी अलग अलग चेंजेस आ गए उनको। तो वो रूट्स और फ्रूट्स के अलावा फिश, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाने लगे और जो मिट्टी से बना हुआ थैच और दूसरे अदर चीज़ों से, मटेरियल से बना हुआ घर में भी रहने लगे। तो उसके बाद वो एग्रीकल्चर करने लगे, फार्मिंग करने लगे और अलग अलग स्टोन से बने हुए टूल्स, वेपन्स बनाए। और जो ये नीचे आपको एक टेबल दिया है, तो उस टेबल से आपको पता चलता है कि ग्रेन्स कौन से ग्रेन्स थे, वहाँ पे सेटलमेंट कहाँ थी और कौन से वेपन्स और कौन से एनिमल्स वो यूज़ करते थे, कौन से प्लेस में उनके एविडेंसेस मिले थे। We get information about their human settlement and cattle rearing from places like Burjom, Gufkral, Shurangi, Mehergarh, Langhar and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists from places such as Mehergarh and Inamgaon. We even get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and bajra. तो ये सारे जो प्लेसेस से वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले थे प्रिमिटिव मैन के बारे में। तो वो कौन से क्रॉप्स उगाते थे, बार्ली और बाजरा। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड इनामगांव। दीज माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। तो शार्प स्टोन्स यूज़ करते थे। तो ये कहाँ पे मिला उनको, मेहरगढ़ और इनामगांव में, इस प्लेस में उनको ये शार्प स्टोन के इम्प्लीमेंट्स मिले थे।
Mehargarh may be considered to be the oldest village of ancient India. You see Mehargarh in map. Farming of barley and wheat started from here. They reared sheep and goat. तो मेहरगढ़ इंडिया में सबसे बड़ा पुराना विलेज है. तो वो क्या करते थे, बार्ली और वीट उगाते थे और वो शीप और गोट का रेयरिंग करते थे. They did farming and stored grains. Bones of animals have also been found here. They lived in rectangular houses. Small barns have also been found in these houses. तो उस एविडेंसेस से हमको ये पता चलता है कि वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे. अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस फाउंड इन मेहरगढ़, दे ऑनर्ड द डेड by burying them. Many such evidences have been found here. Evidences has been found at one place that goat was also buried along with man. This suggests that their belief that there is a life after death also. जो डेड बॉडी होती थी मरने के बाद वो लोग क्या करते थे, उसको दफनाते थे और उसके साथ उनको आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे एविडेंसेस मिले थे, कुछ डेड बॉडी के साथ उनको गोट भी मिला था. तो वो लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन होती है. इन द सेम वे अ प्लेस नेम्ड इनामगांव has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. They lived in round shaped houses, reared cattle and did farming of bajra and barley. तो ऐसे ही कुछ एविडेंसेस इनामगांव महाराष्ट्र में भी मिले थे और उनके डेड बॉडीज़ ऑफ चिल्ड्रंस के मिले थे वहाँ पे. दे लिव्ड, तो कैसे घर में रहते थे, राउंड शेप के घर में रहते थे और वो कैटल रेयरिंग करते थे और फार्मिंग में करते थे और बाजरा और बार्ली की क्रॉप्स उगाते थे. ओके, वी विल फिनिश अवर सेकेंड चैप्टर. सो रीड इट. इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, प्रॉपरली रीड द chapter and try to understand.